Hello everyone, how are you all? Hello, Hello, sir. sir. I'm fine, sir. What about you? What about you? I'm fine, sir. What about you? This session we are going to study English subject, and in today's session we have to read about the subordinating conjunctions. In today's session we will be talking about the subordinate, which is also known as a subordinating conjunction. Okay. So this, in our last session we talked about this reader's right, and there was a work which was given as an activity for you all. I hope you have done. Is there any query, any question from you all related to this? Anybody are having Sir. No, sir. No, sir. activity? Also, you all do this one. It's based on the last session. The voice from someone's place. Aman Verma. Voice. Verma. There is a voice from the surrounding. Mute your mic, please. Otherwise, I have to remove. So, beta, in today's session, we have to talk about the subordinating conjunction. So, before moving ahead, there is a one question. How many know, how many are familiar with the conjunction? What is conjunctions? What are conjunctions? Who can tell? What are conjunctions? How many can tell? Saurabh Kanojia. Tell us, beta. Yes, sir. What are conjunction? Sir, conjunction is a word. Sir, the italic parts of conjunction is called subordinating conjunction. I am asking what is conjunction, not subordinating conjunction. Now I am asking what is conjunction. Conjunction क्या है पहले ये तो बताओ आपको. Subordinating conjunction आपको पढ़ाया जाना शुरू हो गया. You all are not knowing about the conjunction. नहीं बताओ conjunction क्या होते हैं. इनका को पता है और किसको नहीं पता है. Sir, may I tell? किसको नहीं पता है. They have to show their hand first. Down your hands. How many do not know? और जिनके हाथ नहीं उठे रहेंगे इसका मतलब उनको आता है. मैं उनका नाम लेकर के पूछूंगा मैं तुरंत. कितने लोगों को नहीं आता है वो हैंड रेज करें ईमानदारी से. और अगर कोई इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको क्लास से तुरंत मैं बाहर करूं. अगर आपको केवल हाजिरी लगाने के लिए बैठे हैं तो मैं मुझे नहीं पढ़ाना ऐसे बच्चों को. How many do not know about the conjunctions? सावित्री को नहीं पता है, विकास वर्मा को नहीं पता है, सौरभ कनौजिया को नहीं पता है, सचिन चौहान को नहीं पता है, रुचि को नहीं पता है. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में शुरू कर दूं ऐसे कैसे होगा? किसी को एक तरफ से सभी लोगों ने हाथ खड़ी कर दिए. चलो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आज हो चुका है. आज से हम कंजक्शन ही पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं ये नाम बताना है. सौरभ कनौजिया बताइए. Sir, 8 parts of speech. Sir, noun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. कंजक्शन नहीं पढ़ा था. वर्ब क्या होता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब नहीं पता था. ये सब नहीं पढ़ाया गया है. कंजक्शन नहीं पढ़ाया गया है इसके पहले कभी. Conjunction actually ठीक है. There are some students who can tell about the conjunction. How many know about the conjunctions? Now raise your hand who is knowing about the conjunction. How many know about the conjunction? Shanika and Divya. Atul Chauhan also knows.
Sachin Chauhan also knows. Anil Maurya is also knows. Okay, Anika beta, tell everyone that what is conjunctions. Sir, word that used to join to words, to sentences, or to phrases are called conjunction. Sachin Chauhan. Conjunction is a word that join to word, to sentence, or to paragraph. पैराग्राफ को भी ज्वाइन करते हैं. पैराग्राफ का मतलब समझते हैं? पैराग्राफ, दो पैराग्राफ ज्वाइन हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तो पैराग्राफ अलग अलग कहाँ पे रह जाएंगे, वो तो एक सिंगल पैराग्राफ चलाएगा. कंजक्शंस आर द वर्ड. कंजक्शन एक शब्द ही होता है, जैसे नाउन प्रोनाउन होता है, सेम उसी तरह एक शब्द होता है. कंजक्शंस आर द वर्ड दैट जॉइंस टू डिफरेंट वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू सेंटेंसेस. दो डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करना, दो अलग सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करना, या टू फ्रेजेस को एक साथ ज्वाइन करना. जिस वर्ड का यूज किया जाता है, इन दो डिफरेंट वर्ड, सेंटेंस या फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है, वही कंजक्शंस कहलाते हैं. हिंदी में अगर बोले, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस कहें, और ऑल योर, और simply if we have a sentence where conjunction would be there in Hindi, तो हम कह सकते हैं कि राम और श्याम घर जा रहा है. तो राम और श्याम, there are two words, and for joining Ram and Shyam we have used and, so that is a conjunction. Now you all are studying English subject, तो English में ऐसा कोई sentence बताइए यहाँ पे कंजक्शन यूज किया गया हो. जिनको समझ में आ गया है वो बताइए. दिव्या, आप बताइए, माइक ऑन करके. Sir, the exam was very easy and everyone was very happy. Which word is the conjunction in this sentence? Sir, and. Tell me again the sentence. Pardon your sentence. Sir, the exam was very easy and everyone was happy. क्या बोला बेटा आपने, जरा फिर से बोलिए. The exam was. The jam. Sir, exam. The exam was very easy. And all was happy. And all was happy. सेंटेंस आपका बहुत appropriate तो नहीं लग रहा है. But which one is the conjunction in this sentence? आपके हिसाब से conjunction कौन सा वर्ड है? Sir, and. चलिए ठीक है बेटा. किन्हीं दो वर्ड्स को, किन्हीं दो सेंटेंसेस को जिन वर्ड्स का यूज करके हम ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन. कंजक्शन, लेट्स से देयर इज अ मेनी एग्जांपल्स इनटू योर बुक एज ऑलरेडी. Let's say if we write from, not from your book, just I'm writing a word. The doorbell rang. इसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा है. Now you all have to find that कि whether is there any conjunction or not. रुचि, कंजक्शन वर्ड कौन सा है इसमें, जरा बताइए. सर, दादा. दा कंजक्शन है. दा किसको किसको जोड़ रहा है, जरा मुझे बताइए. कंजक्शन क्या होते हैं? सर, there is conjunction word. कंजक्शंस क्या होते हैं ये बताइए. So the word join two words or two sentence is called conjunction word.
There is no conjunction word. जो भी बताएगा मुझे कंजक्शन वर्ड्स, ऑल्सो आई वांट टू नो दैट कि दैट कंजक्शन वर्ड्स किसको किसको ज्वाइन कर रहा है, कौन से दो वर्ड ऐसे हैं या दो सेंटेंस हैं या फ्रेजेस हैं, किसको ज्वाइन कर रहा है. ऑल्सो यू हैव टू टेल. Yes, Atul Chauhan, which one is the conjunction word in this sentence? No any conjunction, different tense. Which one is the conjunction in this sentence? No any conjunction, different tense. There is a no conjunction word. कोई conjunction word है ही नहीं. Yes, sir. When the doorbell rang, the door. Now tell me that is there any conjunction words or not? How many? Yes, Sushma, Savitri, Tanishka. Better tell us that whether is there any conjunction word or not. If yes, then which one is the conjunction? If no, then Tanishka, which No, one sir. conjunction word is there? Is there any conjunction word or not? No. Savitri is telling no. Okay, Niharika, what do you think? Is there any conjunction word? No. Tanishka, Sir, no, sir. Shanvika, No, sir. there is no conjunction. Okay. Yes, Acha, how many sentences are there? How many sentences are there? Sir, Sir, two sentences. How many two classes? sentence. How many classes are there? How many classes? Sir, two classes. कौन कौन से classes हैं? जरा बताइए. How many clauses are there and which one is the? Tell me all the clauses. Chanvika, बताइए आप ही. Sir, the bell rang. The doorbell rang. सर यहाँ पर सर जो ज्वाइन किया गया है इसको सर कॉमा से ज्वाइन किया गया है सर, कंजक्शन से नहीं. बेटा आपको ये आप कह रही हैं कि जो कंजक्शंस हैं वो हमेशा दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के बीच में, सिर्फ बीच में ही कंजक्शन वर्ड आते हैं, पहले या बाद में नहीं आ सकते. सर आते हैं सर, जैसे सिंस आते हैं. सिंस, हाँ आपने सही एग्जांपल दिया, जैसे कि सिंस. Unless you are willing to try and try again. There is a one sentence. Let me use the highlighter. Right now, I do not have the highlighter in this option. Okay, there is no highlighter option. Can you tell? Achha, there is one more thing. There is a underline. I can underline. Unless you are willing to try and try again, you cannot succeed. There is also more than one phrase. There is two phrases are there. Yes, sir. और Yes, sir. अब आप इसको यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, आप जो पहला और सेकंड फ्रेज को कॉमा से, पहले और दूसरे सेंटेंस को कॉमा से ऐड किया गया है, तो कॉमा क्या कंजक्शन है? तो सर अनलेस है सर अनलेस कंजक्शन. उस सेंटेंस में बेटा अगर दिमाग में आपने ये बिठा के रखा है कि कंजक्शन हमेशा दो वर्ड या दो सेंटेंस के बीच में आएंगे, तो ऐसा नहीं है, वो पहले भी आ सकते हैं. इन द सेम वे, इफ आई टॉक अबाउट द सेंटेंस व्हाट आई रोट, व्हेन द डोर बेल रैंग, इसका मतलब क्या हुआ? जब
घंटी जब घंटी बजी। जब घंटी बजी जब घंटी बजी जब भी डोरबेल बजा, माई डॉग बार्क्ड लाउडली, जो मेरा डॉग था दैट बार्क्ड वेरी लाउडली, बहुत ही तेजी से बार्क किया, भौंका। तो देयर इज अ टू सेंटेंस। अगर हम इफ आई वुड बी राइटिंग हियर ओनली द डोर बेल रैंग, इफ आई वाज, अगर हम इतना ही लिखे हुए होते द डोर बेल रैंग, तो इट वाज द कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट था या नहीं? यस सर। सर When the door bell rang, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, तो लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? जब हमारी जब भी डोर बेल बजी, जब भी डोर बेल बजा, जब डोर बेल बजा, नो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ अधूरा लग रहा है कि नहीं, कि देयर शुड बी समथिंग। फिर क्या हुआ उसके बाद? यस सर यस सर। That means कि here also we need some more. Here something is after this sentence, after this phrase, after this clause, also there is a some other clauses are there. So that was when the doorbell rang, my dog barked loudly, and it is the result. What happened? बेटा होता क्या है? Conjunctions are different types. कई बार coordinating conjunctions भी होते हैं, subordinating conjunctions भी होते हैं. So today just we have to talk about the subordinating conjunctions. अब ये subordinating conjunctions क्या होते हैं यही समझना है. अभी conjunctions क्या होता है? दो सेंटेंस, दो वर्ड को कहीं पे भी जो जोड़ते हों वही आपके कंजक्शंस कहलाएंगे। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये कहां पे आते हैं, कैसे आते हैं, आज आपके इस टॉपिक में यही चीजें सीखना है। So let us talk about the subordinating conjunction. If you want to good at any time, you need to preserve. एक सेंटेंस यहाँ पे भी लिखा है जैसे मैंने लिखा था, in the same way there is a one complete sentence. If you want to be good at any time, you need to preserve. That means यहाँ पे if word से आपको एक ही सेंटेंस शुरू किया गया, जिसके बाद अगर ये if word नहीं होता, you want to be good at anything, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता, उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कोई कंजक्शन से कोई भी आपका फ्रेज शुरू होता है, कोई भी क्लॉज आपका कंजक्शन से, बार बार मेरे मुंह से फ्रेज निकल जा रहा है, प्लीज डोंट कंफ्यूज। इफ एनी ऑफ द क्लॉज इज स्टार्टिंग विद द कंजक्शन वर्ड, दैट मीन्स अगर कंजक्शन वर्ड से शुरू हो रहा है तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा ही नहीं। दैट विल बी ए हेल्पिंग क्लॉज। हेल्पिंग क्लॉज मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस का एग्जांपल अगर दे दे तो दिस इज द इनकम्प्लीट सेंटेंस। यहाँ पे माई डॉग बार्क लाउडली को हटा लिया जाए तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए इनकम्प्लीट सेंटेंस। अच्छा, क्लॉजेस क्या होते हैं ये पता है आप सभी को? बेटा अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, आप लोग बताएंगे, नहीं आता है, नहीं पता है तभी तो मैं बताऊंगा। यस सर यस अगर सर पता है, कितने लोग को क्लॉजेस क्या होते हैं ये कितने लोग को पता है? हाउ मेनी नो अबाउट द क्लॉज? ओके, सौरभ कनौजिया बताइए। सर व्हेन put if clause at the beginning of the sentence we add comma after it. अच्छा, क्या जरा मुझे हिंदी में समझाइए क्या होता है क्लास, मुझे समझ में नहीं आया इंग्लिश में। सर जब हम सर क्लॉज को सर शुरुआत में, सर सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं तो सर सर उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये है
ये अगर कोई भी सेंटेंस इफ से शुरू करते हैं, आपने यही बोला तो बाद में कॉमा लगाएंगे तो ये क्लॉज हो जाएगा। सर सेंटेंस के बाद सेंटेंस के बाद कॉमा लगाएंगे तो ये क्लॉज हो जाएगा। सर हाफ सेंटेंस के बाद, हाफ सेंटेंस या फुल सेंटेंस के बाद अगर कॉमा लगाए तो क्लॉज बन जाएगा। मैं पूछ रहा हूं क्लॉज क्या होता है? कॉमा लगाने से कुछ नहीं होता, आपको पता ही नहीं है व्हाट इज क्लॉज। एनीबॉडी एल्स हु वांट टू ट्राई? तनिष्का, आपको पता है व्हाट इज क्लॉज? बताइए बेटा, पता है? नो सर। नो। तो बेटा सर पता है शान्विका, सर आई नो। Shanika, I'm not getting the moving picture from your side. You need to be having a good network connection because your voice is also breaking. Shanika want to say something. She knows, actually she is telling that, but she is not connected right now. Okay. Yes, Shanika. That has a subject. Sir, a clause is a collection of words that has a subject, a verb, and can be independent sentence. Beta Shanika, it may be independent sentence, it may be dependent sentence. आपने जो बताया फिलहाल that is correct. क्लॉज क्या होता है? एक सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही क्लॉज बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, द डोर बेल रैंग, अभी जो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, ये व्हेन भी लिखा है, व्हेन भी हटा दीजिए। लिखा द डोर बेल रैंग, दैट इज ए कंप्लीट सेंटेंस। इसका पूरा एक मतलब निकल जा रहा है। दिस इज ए क्लॉज। द डोर इज ए सब्जेक्ट, बेल इज द डोर बेल इज ए सब्जेक्ट एंड रैंग इज ए वर्ब। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के जहां पे भी कॉम्बिनेशन लगे मिले आपको, दैट इज अ क्लॉज। अब कुछ क्लॉज आपके इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ कंप्लीट होते हैं। कुछ सेंटेंस आपके कंप्लीट होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट होते हैं। अब आपको ये पहचानना है, जो सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंटेंस दिखे, दैट इज ए known as a independent sentence या independent clause, क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है? लेकिन जो भी सेंटेंस आपको अधूरा दिखे, जो भी सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट दिखे, दैट इज नोन एज ए डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। यानी डिपेंडेंट मतलब, आपको डिपेंडेंट मतलब समझ रहे हैं? जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट है वो सेंटेंस ही, वो क्लॉज किसी और डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर। तो क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब जहां पे भी इकट्ठा मिले आपको, आपका उसका कॉम्बिनेशन साथ में मिले, दैट इज अ क्लॉज। यू आर विलिंग टू, नाउ हियर द डोर बेल रैंग, दिस इज ए क्लॉज, बट दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस। तो कंप्लीट सेंटेंस को कोई भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन when you write this one, when the doorbell rang, now this is also one of the clause, ये भी clause है। देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका वही है, सब्जेक्ट आपका द डोर बेल है, रैंग भी है, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, ये भी क्लॉज है। बट when लगे, when जो शुरू में when लग गया है, तो when की वजह से इसका जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट हो गया है। when the doorbell rang, इसके बाद कुछ होना है, तो दैट मीन्स दिस इज ए इनकम्प्लीट सेंटेंस। और इनकम्प्लीट सेंटेंस जो है इसको क्या बोलते हैं? किस तरह का क्लॉज बोलेंगे? हेल्पिंग क्लॉज। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग क्लॉज। हेल्पिंग क्लॉज द डोर बेल रैंग है। इस ये हेल्पिंग क्लॉज ये कंप्लीट सेंटेंस से इनकम्प्लीट क्यों बन गया है? व्हेन की वजह से, व्हेन की वजह से।
when की वजह से ये इनकम्प्लीट हो गया, यानी अब पूरा करना पड़ेगा, दूसरा और सेंटेंस लिखना पड़ेगा, किसी और सेंटेंस को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद तब जब जोड़ा गया तो क्या हो गया, my dog barked loudly, now this is complete, यानी in this sentence the doorbell rang and my dog barked out loudly, ये दोनों सेंटेंस को क्यों जोड़ा गया, when की वजह से, when के थ्रू, when के थ्रू जोड़ा गया। तो when इज ए कंजक्शन, किस तरह का कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्यों है, जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, जब शुरू में लग करके किसी ऐसे क्लॉज के साथ, किसी क्लॉज के शुरुआत में ऐसे कंजक्शन जो किसी क्लॉज के शुरुआत में आकर के लग के उस सेंटेंस को इनकम्प्लीट कर देते हूं, दैट वुड बी नोन एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ओके, यस सर। Yes, sir. now come to your book. There is a first sentence, if you want to be good at anything you need to preserve. The second sentence is, unless you are willing to try and try again you cannot succeed. The third sentence is, although success is sweet, although success is sweet में भी देखेंगे success is sweet, सफलता मीठा अच्छा होता है, मीठा होता है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, सक्सेस इज स्वीट। बट ऑल्दो में यद्यपि, यद्यपि सफलता अच्छा लगता है, स्वीट होता है, लेकिन अब ऑल्दो मतलब जरूर कुछ छिपा है इसमें, कुछ और कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, द रोड टू इट इज रफ, कुछ और जो अब जाके ये दो सेंटेंस है, द रोड टू इट इज रफ और ये सक्सेस इज स्वीट, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए ऑल्दो का यूज किया गया। तो ऑल्दो इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। The great dancer Sudha Chandran accomplished a lot even though she lost a leg in an incident when she was 16. Though she faced great difficulty, she went on to become one of the India's greatest dancer simply by persevering till she achieved her dream. बेटा कहने का मतलब ये है, कंजक्शंस क्या होता है ये ऑलरेडी बता दिया गया है, क्लॉजेस क्या होता है आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यस आपको जो ये पैसेज अभी पढ़ा आपने, इसमें अगर आप देखेंगे द इटैलिक पार्ट्स आर नोन एज ए सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास मींस, एक बार देखते हैं, इफ यू वांट टू बी गुड एट एनीथिंग, जिसको आप कहते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस, हेल्पिंग क्लॉज, तो ये जो आपका क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरुआत जिनका होता है, इसीलिए इनको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। तो जो इटैलिक मतलब जो टेढ़ा है, जो इटैलिक फॉर्मेट में लिखा है, कहां से दूसरे के एनीथिंग तक ही तो इटैलिक है, तो दिस इज कॉल्ड एज subordinate clauses because subordinate conjunctions are there at the beginning of subordinate clauses, subordinating conjunction are there या subordinates are there, subordinating conjunction को ही subordinate भी बोला जाता है। and the words in bold are subordinating conjunction, जो bold में है, जैसे कि यहाँ पे if, जैसे कि यहाँ पे if, जो if है this is called as subordinating conjunction, जो इटैलिक फॉर्मेट में है दिस इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लासेस। ओके, Yes, sir. अनलेस यू आर विलिंग टू ट्राई अगेन, जब तक आप कोशिश नहीं करने के लिए करते रहेंगे, कोशिश नहीं करते रहेंगे, यू कैनॉट सक्सीड, आपको सफलता नहीं मिलेगी। यू कैनॉट सक्सीड ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट ये कंप्लीट यू कैन नॉट सक्सीड जो है ये आपके पहला जो ये यू आर विलिंग टू ट्राई एंड ट्राई अगेन से जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है, अनलेस वर्ड की वजह से। ओके, ऑल्दो मींस यद्यपि, अनलेस मतलब हर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के जितने भी वर्ड्स हैं उसके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होंगे, और उसको देखते हुए कैसे वो यूज किए जा रहे हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, वी हैव टू ऑब्जर्व ऑल दोस थिंग्स।
नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द क्लॉजेस. क्लासेस के बारे में ऑलरेडी बताया भी जा चुका है, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपकी बुक में भी है. देयर आर क्लासेस दैट आर कंप्लीट सेंटेंस. कुछ ऐसे क्लासेस होते हैं जिसमें कंप्लीट सेंटेंस होता है, एंड देयर आर क्लॉजेस दैट आर नॉट, जो कि नहीं कंप्लीट होते हैं. इनकम्प्लीट सेंटेंस आर कॉल्ड हेल्पिंग क्लासेस. जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग क्लासेस कहलाते हैं. अ सेंटेंस व्हिच हैज अ मेन क्लॉज एंड अ हेल्पिंग क्लॉज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका हेल्पिंग क्लॉज और इसमें हेल्पिंग क्लॉज और मतलब कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस दोनों को मिला करके पूरा सेंटेंस बनता है. दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अ सेंटेंस व्हिच हैज अ मेन क्लॉज एंड हेल्पिंग क्लॉज. मेन क्लॉज आपका जो आपका जुड़ता है, और हेल्पिंग क्लॉज क्या है? जो आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है. ये दोनों सेंटेंस को जो मिल करके जो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हेल्पिंग क्लॉज आर कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. हेल्पिंग क्लॉज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. द कंजक्शन व्हिच जॉइंस द मेन क्लॉज. ऐसा कंजक्शन जो मेन क्लॉज को हेल्पिंग क्लॉज से ज्वाइन करता है, दैट इज नोन एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. समझ में आ रहा है? यस सर. सो तो नहीं रहे कोई? Some subordinating conjunctions are if, unless, till, until, though, although. बेटा for all your information, जितने भी subordinating conjunctions होते हैं वो हमेशा लगभग often it you'd be getting in the at the beginning of the sentence. Okay. Yes sir. For example, the teacher said she will not return my Rubik cube until I completed the essay. अब इसमें क्या होता है? The teacher said she will not return my Rubik cube until I completed the essay. Now until यहाँ पे बीच में है, कोई जरूरी नहीं कि आपको शुरू में ही आया हो, बीच में भी हो सकता है. अभी पहला सेंटेंस, द टीचर सैड शी विल नॉट रिटर्न माय रूबिक क्यूब, ये तो एक पूरी तरीके से सेंटेंस आपको एक मेन वर्ब मतलब मेन क्लॉज की तरह दिख रहा है. until I completed the essay, until I completed the essay, and I completed the essay is a मतलब इज ए कंप्लीट सेंटेंस. एक तरीके से आपका कह सकते हैं मेन क्लॉज है, लेकिन जब until लग गया आई कंप्लीटेड द ऐसे के पहले until जब लग गया तो क्या हो गया? ये अधूरा हो गया. until I completed the essay, until I completed the essay क्या हो गया? एक तरीके से हेल्पिंग क्लॉज की तरह काम करने लगा, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस. until I completed the essay सिर्फ यहां से यहां तक आपका क्या है? ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया ना. अब इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो आपका मेन क्लॉज था इसको जोड़ा गया. एंड और किस वर्ड से? until. तो the until is a subordinating conjunctions. In this way you all have to solve these exercises and I have to find out the subordinating conjunction. Subordinating conjunctions क्या होते हैं? कितने लोगों को समझ में आ गया? क्या होते हैं तनिष्का? सर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? सर सर हाँ कोशिश करिए, गलत सही डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं. क्लॉजेस क्या होते हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं, ये दोनों पता है? कौन बता सकता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? कौन बता सकता है? रुचि बताइए. The conjunction that have main clause and helping clause is called subordinating clause. बेटा आप क्या कह रही हैं? दैट इज नॉट करेक्ट. द सेंटेंस फॉर्मेशन is not appropriate. What do you want to tell? You can speak in Hindi as well. The conjunction which joins the main clause and helping clause is called subordinating clause. फिर से बताइए. The conjunction which joins the
main clause and helping clause is called subordinating clause. ऐसा कंजक्शन जो मेन क्लॉज और हेल्पिंग क्लॉज को ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ओके, आप ये कहना चाह रही हैं, दैट इज गुड, करेक्ट. एनीबॉडी एल्स? हेल्पिंग क्लॉज मेन क्लॉज क्या होते हैं, ये समझ में आया? Yes, sir. क्या Yes, होते हैं sir. हेल्पिंग क्लॉज मेन क्लॉज, सानिका? Sir, the help जो main clause होते हैं, sir, the main clause can be are the sentence which can say without anyone's help, but the helping clause are the clause which help the which complete those sentence. Anybody else who want to try? हेल्पिंग क्लॉज क्या होते हैं, मेन क्लॉज क्या होते हैं, कौन बताएगा? यस, सौरभ कनौजिया. Sir, the clause that are complete sentence and that clause are not incomplete sentence are called helping clause. आपने दो चीजें बोला. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल व्हाट इज द, चलिए 2 मिनट बचा है, मैं स्वयं समझा दे रहा हूँ. दिव्या आल्सो वांट टू टेल. यस दिव्या. There are clause that are complete sentence. It is called main sentence, and the sentence is not in the sentence is incomplete sentence is called helping clause. Yes, the sentence which is not having the that is not complete, that is incomplete. Incomplete sentences are known as a helping clause. Helping clause आपको पता है, helping clause जब कंप्लीट सेंटेंस हेल्पिंग क्लॉज को जो मेन क्लॉज है उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो भी वर्ड्स का यूज किया जाएगा, दैट वुड बी द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. हेल्पिंग क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. जो हेल्पिंग क्लॉज होते हैं दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. समझ में आया? अब वो हेल्पिंग क्लॉज आपका पहले वाला सेंटेंस में पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है. ओके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, हेल्पिंग क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों क्लॉज होना चाहिए. उसको सिर्फ ज्वाइन करने वाला ही कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा, हर कोई कंजक्शन नहीं. ओके बेटा, यू ऑल हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. इन द नेक्स्ट सेशन वी वुड बी डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा. इस एक्सरसाइज को सॉल्व भी किया जाएगा. समझ में आया? अभी आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले इसको अपनी मर्जी से आपको सॉल्व करना है, सो दैट जब नेक्स्ट क्लास में जब इसको एक्सरसाइज डिस्कस हो तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट यू हैव रिटन, तो आप जिसे क्रॉस चेक कर सके कि हाँ जो आपने लिखा है क्या वो सही है या नहीं. अगर सही होगा तो बहुत अच्छी बात, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अगर गलत होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, सही कर लीजिएगा. बट यू ऑल नीड टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. ऐसा ना हो कि कोई कंप्लीट ना करे. ओके?